I hope you guys can see my screen. A very good evening to everyone. And this will be a quick and short presentation where we'll try to study what is in offer from Nifty, where it is going. And we'll also try to see some large cap stocks which uh, might be forming bottom or which may form bottom in the coming week or weeks, and then which can give us 5 to 10 to 15 20% returns in the coming months or coming year. So if we look at the chart of Nifty right now, what we are seeing today is that Nifty is near its major support level, which is the 50 EMA mother line. As you can see over here, the mother line of 50 weeks is 18665, right? So Nifty is currently just above it, and we hope that Nifty will take support over here and then it can bounce back. Now further, if we see that if this level is broken, then we can see Nifty falling to 18333, which I feel is a major support, because it will be here where you will see the mid channel support of Nifty, as well as nearby there is a trend line support also, which is coming from mid May. So this probably looks like a level. These two look like strong levels from where Nifty can bounce back. If these levels are broken, then unfortunately we might see the levels of 17,700 or 16,800, which looks less likely. What looks more potentially likely is that Nifty might bounce from 50 EMA, or it can bounce from a level below where there is mid-channel support. Other than that, you can see Nifty has traditionally been taking support near this RSI level in last 1 year. You can see it usually bounces from this line, the relative strength of Nifty. So we are near that place right now. The RSI of Nifty, weekly RSI of Nifty is 45, and the support is around 38 levels. So we might look to bounce from this level, which also percentage wise, if you see, can be somewhere around 18,300 or 18,800 levels. So this is what Nifty looks like. In the worst case scenario, if the war prolongs and things go bad from here, then I see Nifty going to 17,700 or 16,800 levels. इससे नीचे जाने का ज्यादा चांस मुझे लग नहीं रहा है. प्रेमल देसाई जी कह रहे हैं, हैव यू पोस्ट पास्ट रिकमेंडेशन बट व्हाट न्यू बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ. समझा नहीं प्रेमल भाई आप क्या बोल रहे हैं. अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आप अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं. So this is what the Nifty looks like on a weekly chart. Today we are going to see some other stocks which are long-term investment ideas, which can be portfolio stocks, and which look like going near the bottom, or which might form bottom in the coming time. So the first of the stocks which looks good to go long is IndusInd Bank. I have here given the levels of IndusInd Bank, which can be the best buy zones, which can be good buy zones. Note करने की जरूरत नहीं है कुछ भी. This booklet, we will be sharing this data as a booklet in the free groups as well as our special customers group. Many of you might be members of the special group. Some of you, I can see, are not members of the special group. They are members of free group. So special group is where we give 7 to 8 educational ideas every day, and there is proper follow up given. Stop loss क्या रखना है, trailing stop loss क्या रखना है,
और उसके अलावा जब कोई टारगेट हिट होता है तो उसके भी रिमाइंडर्स आते हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, फ्री ग्रुप में कम होता है, राइट। जो स्पेशल ग्रुप है, जिनका हमारे पास अकाउंट है, जो हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपको स्पेशल ग्रुप की मेंबरशिप वगैरह चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी on my WhatsApp number. Now, going further, what we can see is that based on this chart, IndusInd Bank can give us around 5 to 10% in coming 6 to 12 months. In the long term, in 12 to 18 months, we can definitely, most likely scenario, gain 10-15% in IndusInd Bank. IndusInd Bank का 10-year median जो है वो 23.8 है, मतलब 10 ईयर एवरेज जो है उसका 23.8 है। और अभी इंडसइंड बैंक का करंट पी जो है दैट इज अराउंड 13.2। सो देर इज अ चांस दैट expansion of P might happen, and with expansion of P we can see the price of IndusInd going up in medium to long term time frame. Again, purpose of this video is educational, and this for your analysis only. You might not treat this as a recommendation of any kind. You need to check with your investment advisor and take wise decision based on the data available here. Our data has been collected from various websites like Trendline, Screener, Money Control, and our own in-house research. So this is what the chart of IndusInd looks like. तो यहाँ पे आप देखिए कि 50 EMA का सपोर्ट है 1283 पे, उसके नीचे 200 EMA का भी सपोर्ट है। 1035 के नीचे अगर जाता है तो वीकली क्लोजिंग, तो आप उसको एक स्टॉप लॉस समझ के चल सकते हैं। Otherwise, the chart looks good. It has taken support near 1345 level, and tracking quantity you can buy right now. Good buying zone will be when it bounces. कभी भी we don't buy a falling knife. हम गिरता हुआ स्टॉक, गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं लेना चाहिए। जब एक वो बॉटम बना के बाउंस करे, that is the right time to buy the stocks. So IndusInd Bank looks okay on chart. 1283 to 1345 on a bounce will be the best buying zone, and 1345 to 1389 will be good buying zone. अभी आप इसकी ट्रैकिंग क्वांटिटी अगर चाहें तो लेके रख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। कई बार ट्रैकिंग क्वांटिटी लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी, अगर आपको इसमें समझो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 1-2 स्टॉक आप लेके रख सकते हैं। अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो आप 10 स्टॉक लेके सकते हैं। X/10 लेवल जनरली is the tracking quantity in my personal research and in my personal opinion. तो एक ट्रैकिंग क्वांटिटी लेके रख दो ताकि वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि भाई हाँ, ये जब ये लेवल पे आए और यहाँ से बाउंस हो तो मुझे ये खरीदना है। तो एक ट्रैकिंग क्वांटिटी लेके रखना एक अच्छी बात होती है इन एनी गिवन इन द स्टॉक्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। IndusInd Bank results and all were also okay, and chart is also looking good. मार्केट बहुत गिरा है पिछले इस वीक में, ऐसा बोल सकते हैं, बट IndusInd Bank आप देखिए इतना ज्यादा गिरा नहीं है। इधर वो कंटिन्यूअसली 1345 का सपोर्ट लेके गुजराती बोलते हैं ना कि 1345 નો સપોર્ટ લઈને અડીખમ ઊભો છે, वैसा इसका हाल है। The next stock that I would like to talk about is ICICI Bank. इसका करंट प्राइस 908 है और इसके गुड बाइंग जोन 797 और 834। बेस्ट बाइंग जोन इज गुड बाइंग जोन इज 834 to 874. बेस्ट बाइंग जोन इज 797 to 834. ट्रैकिंग क्वांटिटी कैन बी टेकन एट CMP, और ये भी आप देखिए जो 10 ईयर मीडियन है उसके नीचे ये स्टॉक भी चल रहा है अभी। आज जो है ये स्टॉक ने जो इसका 50 वीक्स का EMA है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं गिनी जाएगी।
बट देखते हैं अगर यहाँ से ये 874 या 834 या 797 जिस भी लेवल से बॉटम बनाने के बाद जब बाउंस कर रहा हो, उस टाइम पे ये स्टॉक को लेने का राइट टाइम होगा। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, उसको बॉटम बनाने दो, बाउंस होने दो। मोड़ी लेवी पण ओडी लेवी ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में, दैट मीन्स थोड़ा लेट लो, 10-15 रुपया महंगा लो, थोड़ा महंगा लो, बट उसको जब आपको कंफर्म हो कि हाँ यहाँ से ये बाउंस हो रहा है, तब कोई भी स्टॉक लेना चाहिए। तो ये आईसीआईसीआई का चार्ट है। जो अगला स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है, 4 से जस्ट नीचे है इसकी डिविडेंड यील्ड। और द बेस्ट बाइंग जोन फॉर इंडियन ऑयल कैन बी 72 टू 81। गुड बाइंग जोन इसका 81 से, करंट मार्केट प्राइस जो है वो भी एक गुड बाइंग जोन मेरे ख्याल से इसको मान के चलना चाहिए। इसमें भी आप 5 से 10% मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसमें 10 से 15% प्लस आप डिविडेंड यील्ड लगा दीजिए, उतना ग्रोथ का चांस है। 10 ईयर मीडियन अगेन जो 10 साल का उसका एवरेज पी है उससे कम पी पे चल रहा है, और पी एक्सपांशन का भी ये स्टॉक में पोटेंशियल है, जिसके साथ साथ ये एक अच्छा डिविडेंड पेयर भी है। तो अभी आप देखिए ये करीब करीब 50 ईएमए के लेवल पे है, जहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, या फिर उसके नीचे एक लेवल 80 या 72 से बाउंस कर सकता है। तो जब ये बाउंस करने लगे, ऊपर जाने लगे, ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जाने लगे, वो टाइम इसको खरीदने का सही टाइम होगा। द नेक्स्ट स्टॉक अबाउट विच आई विल टॉक इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। बेस्ट बाइंग जोन विल बी 813 टू 825, गुड बाइंग जोन 825 टू 854। इसमें भी करीब करीब उतना ही, जो मैं स्टॉक सिलेक्ट किए हैं सब में करीब करीब उतना ही ग्रोथ का पोटेंशियल है अगले 6 से 18 महीने में। और इसका पी जो है, पी लेवल जो है वो 10 ईयर से ऊपर है, तो पी एक्सपांशन का तो पोटेंशियल नहीं है इसमें, बट चार्ट पे टाटा कंज्यूमर काफी ठीक ठाक लग रहा है। तो ये जब एक बॉटम बना के यहाँ से जब बाउंस दे, तो टाटा कंज्यूमर में हमको एक अच्छा ग्रोथ मिलने का चांस है। मार्केट काफी गिरा, लेकिन टाटा कंज्यूमर इतना गिरा नहीं है। अगर ये नीचे आता है 50 ईएमए का सपोर्ट लेके वापस बाउंस करने लगता है, तो देन टाटा कंज्यूमर विल बी अ गुड स्टॉक टू ऐड फॉर अ लॉन्ग टर्म। या अभी जो भी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ या करूंगा, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया है। ये सारे स्टॉक, ऑल दी स्टॉक्स आर पोर्टफोलियो स्टॉक्स इन माय पर्सनल ओपिनियन। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आईटीसी। आईटीसी का जो एफएमसीजी है, उससे भी इसका काफी 10 फोल्ड या उससे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। आईटीसी ट्रेडिशनली एक अच्छा डिविडेंड पेयर है। आईटीसी का 5-5.5 लाख करोड़ के करीब मार्केट कैप है। 385 से लेके 418 के बीच में अगर ये मिलता है तो इट विल बी अ बेस्ट बाइंग जोन। 412 से लेके अभी का जो मार्केट प्राइस है, ये भी एक गुड बाइंग जोन है। और डिविडेंड यील्ड इसका 2.94% है, जो 10 ईयर का एवरेज मीडियन है उससे थोड़े कम पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी पी एक्सपांशन, पी रिलेटेड प्राइस एक्सपांशन के भी अच्छे चांस हैं। ये आईटीसी का चार्ट है। आज उसने एक बॉटम बनाने की कोशिश की है 425 रुपए के आजू बाजू, तो यहां से अगर बाउंस करता है तो इसको ऐड कर सकते हैं। और या तो फिर ये अगर ये 50 ईएमए है इसका 408 के करीब, वहां से बाउंस कर सकता है। या फिर 385 जो है वो मुझे एक चैनल, जिस चैनल में ये स्टॉक चल रहा है, जैसे पानी एक कैनाल में बहता है ना, वैसे स्टॉक भी, कई सारे स्टॉक एक चैनल में चलते हैं। ये जो टूल मैंने यूज किया है उसको पैरेलल चैनल बोलते हैं। और पैरेलल चैनल में ये जो चल रहा है आईटीसी, वो एक चैनल बॉटम उसका मुझे 385 के आजू बाजू दिखता है। और ये वीकली चार्ट मैंने अभी सारे बनाए हुए हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी। एलएनटी का बेस्ट बाइंग जोन 2235 से 2552 है, और 2552 से लेके 2707 इज अ गुड बाइंग जोन फॉर एलएनटी। ट्रैकिंग क्वांटिटी आप करंट मार्केट प्राइस पे लेके रख दो।
और सिमिलर परसेंटेज ग्रोथ का चांस है। मार्केट कैप इसका काफी अच्छा है। जो करंट पी है वो थोड़ा ज्यादा है उसके 10 ईयर के एवरेज पी से। तो ये अगर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है एलएनटी यहाँ पे, अगर 200-300 रुपए, और फिर बॉटम बना के जब बाउंस कर रहा हो, चैनल टॉप को देखो, ये चैनल टॉप है, उसको टच करके ये जो 3127 है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको टच करके वो नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 2707 जो लेवल है, अगर यहाँ पे इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये चैनल का जो मिड लाइन होता है ना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक उसको और भी सपोर्ट है, तो 2707 का डबल सपोर्ट है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बाउंस कर सकता है। वैसे 2845 पे भी सपोर्ट है, वो अभी जो प्राइस पे है वहीं से भी एक बाउंस ले सकता है। बट ये देखिए आरएसआई में इधर दिख रहा था कि काफी ओवरबॉट जोन में चला गया था, जो बायबैक ऑफर था उस सिलसिले में। तो आरएसआई की वजह से भी इसमें कूल डाउन बनता था, जो कि अभी आपको प्राइस करेक्शन के थ्रू देखने में आ रहा है। तो अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो 2500, 2600, 2700 पे मिल जाता है, तो मैं इसको पर्सनल पोर्टफोलियो में भी, जो मेरा अभी भी होल्डिंग है, मैं भी खुद और ऐड कर सकता हूँ। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया आप सब जानते हैं, एक बहुत अच्छी एफएमसीजी कंपनी है। अभी 4507 इसका प्राइस चल रहा है, और ये बेस्ट बाय जोन इसका 4157 से लेके 4313 होगा। गुड बाय जोन विल बी 4313 टू करंट मार्केट प्राइस। सिमिलर ग्रोथ, 1 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी 1.6% है, और करंट पी जो है उसका 51 है, और एवरेज 10 साल का पी 53.4 है। तो एक पीई रिलेटेड प्राइस एक्सपांशन का भी चांस बनता है इसमें। और यहाँ पे ये देखिए, ये पैरेलल चैनल जो मैंने बनाई है ब्रिटानिया की, उसकी मिड लाइन, जो मैं बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि जो चैनल का मिड लाइन होता है वो भी एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। तो आप देखिए इस स्टॉक में कैसे ये मिड चैनल लाइन उसको इतने दिनों से सपोर्ट दे रही है। और ये मिड चैनल लाइन के पास ही जो 50 ईएमए की लाइन है, 50 वीक्स ईएमए की लाइन है, जिसको मदर लाइन कहते हैं हम लोग। आपको अगर मदर फादर स्मॉल चाइल्ड वाली थियरी नहीं मालूम है, तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और उसमें जो मेरी एक मदर फादर स्मॉल चाइल्ड की थियरी है, उसके बारे में भी आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो उसमें जिसमें मैं ये कंपेयर करता हूँ कि भाई जो स्टॉक का प्राइस होता है वो एक छोटे बच्चे जैसा होता है, वो ऊपर नीचे भागता है। और जो रेड लाइन जो इधर दिखाई है वो मदर लाइन है 50 ईएमए, और जो पर्पल लाइन है वो फादर लाइन होती है 200 ईएमए। तो जैसे ही एक 3 साल के बच्चे को माँ बाप गार्डन में घूमने लेके जाते हैं, तो खुला गार्डन देख के जैसे बच्चा दौड़ता है, वैसे ही स्टॉक का जो प्राइस होता है वो गार्डन देख के, खुली जगह देख के दौड़ता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मम्मी भूख लगी है करके मम्मी से मिलने आता रहता है। मम्मी भूख लगी है, मम्मी से मिलने आता रहता है। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाना दो करके आता रहता है। या कभी बहुत डर जाता है बच्चा, कुत्ते ने भौंक दिया या दूसरे बच्चे ने गुंडागर्दी कर दी, तो भी वो मम्मी के पास, मम्मी को मिलने आता रहता है। और वर्स्ट कम सिचुएशन में, जैसे कि कोविड रिलेटेड या कुछ यूक्रेन वॉर रिलेटेड, तभी वो फादर के आशीर्वाद लेने भी कभी कभी बच्चा आता है, जिसको हम 200 ईएमए बोलते हैं। तो मदर और फादर हमारे बेस्ट सपोर्ट भी होते हैं, और मदर और फादर हमारे सबसे बड़े रेजिस्टेंस भी होते हैं, जो 50 ईएमए और 200 ईएमए है। क्योंकि मदर फादर जो है, अगर पापा को गुस्सा आ गया, अरे नहीं जाने देना है, बार बार गिरता है, बार बार डर के वापस आ जाए, पकड़ो उसको, पापा ने हाथ पकड़ लिया। और 50 और 200 ईएमए के नीचे अगर स्टॉक आ गया कभी, तो फिर क्या होता है कि उसको, ये जितने बड़े सपोर्ट होते हैं ना, इधर जैसे ब्रिटानिया को सपोर्ट मिल रहा है 50 ईएमए का, इसके अगर नीचे स्टॉक आ जाता है ना, तो ये सबसे बड़े रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं। तो मदर लाइन और फादर लाइन सबसे बड़े सपोर्ट होते हैं स्टॉक के, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए। और मदर लाइन एंड फादर लाइन 50 ईएमए एंड 200 ईएमए स्टॉक के सबसे बड़े रेजिस्टेंस भी होते हैं। ये हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट की थियरी है, जो मैंने खुद ने इन्वेंट की। आप कोई भी चार्ट, कोई भी स्टॉक चेक कर लो, वो इसी थियरी के अनुसार चलता आपको मिलेगा। ये थियरी मैं एक्सटेंसिवली यूज करता हूं। तो देखिए ये कैसे मदर लाइन
ये 50 EMA को इधर ब्रिटानिया को सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, तो बच्चा ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो ये ब्रिटानिया के लेवल से ब्रिटानिया का चार्ट है। अगली कंपनी जो हम देखेंगे वो है LTI Mindtree। 4483 to 4776 is best buying zone, 4776 to 4993 is good buying zone, और डिविडेंड यील्ड 1.6% है इसका। और इसका चार्ट अगर हम देखें तो ये भी मदर लाइन के सपोर्ट के ऊपर ही है, जो कि अच्छी बात है, जो आप इधर देख सकते हैं। मदर लाइन ने इसको काफी रोक के रखा था अभी जो क्राइसिस हुई उसमें, लेकिन ये मदर के आशीर्वाद लेके ऊपर की तरफ गया। एक बार वापस नीचे आया है मदर के पास, तो पानी बिस्किट खा के ये वापस बच्चा भागने लगा है। और अभी जो इजराइल वाला जो इश्यू हुआ है उसकी वजह से थोड़ा ये रुक रहा है, लेकिन जब तक ये मदर लाइन के ऊपर है तब तक बहुत बढ़िया है। तो ये LTI Mindtree की स्टोरी है। ये स्क्वीजिंग ट्राइंगल में भी है, तो अगर ये ट्राइंगल तोड़ के ऊपर निकलता है ना, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है और ये स्टॉक अच्छा खासा 10-15% का मूव दे सकता है यहाँ से। द नेक्स्ट स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द प्रीमियर बैंक्स ऑफ इंडिया। 10 ईयर मीडियन जो है इसका 12.6 है, करंट पी इज 7.6 7.3 सॉरी। और अगर आप देखिए तो बेस्ट बाइंग जोन इसका 500 से 542 होगा। 542 से लेके करंट मार्केट प्राइस भी गुड बाइंग जोन है, बट जब गिर रहा हो तब स्टॉक नहीं लेना है। व्हेन इट बाउंसेस दैट इज द टाइम टू बाय द स्टॉक। पोटेंशियल ऑफ प्राइस इंक्रीज भी काफी, रिलेटेड एक्सपांशन भी काफी है इसमें। कमिंग टू अवर, ये चार्ट भी हम देखते हैं। चार्ट इसने मदर के नीचे आज चला गया है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो मिलके यहाँ से अगर बाउंस हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा, वरना फिर ये एक यहाँ पे जो लेवल है 500 वहां तक आ सकता है, जो कि इसका चैनल बॉटम के करीब भी होगा। और अगर वो टूटता है तो इसके पास फादर लाइन का सपोर्ट भी है। तो जिस भी लेवल से वो बाउंस करने लगे SBI, तो वहां से इसमें एंट्री मेरे हिसाब से बनती है। ये SBI का जो चार्ट है वो आपके सामने अभी है। Next stock which about which I will talk is Ashi India Glass. Ashi India Glass, a good buying zone, best buying zone will be 493 to 538. Good buying zone will be 538 to current market price. और इसमें 42.2। सर प्लीज आपका म्यूट कर देना, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। तो 10 ईयर मीडियन जो है ये 42.2 है, इसका करंट पी इज 36.9। तो आशी इंडिया ग्लास में और पी रिलेटेड एक्सपांशन का भी चांस है। आशी इंडिया ग्लास का हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक यू फॉर्मेशन होने का चांस है। एक ये इसको हम कब गिने, और यहाँ से अगर बाउंस देता है तो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी इसमें हो सकता है। तो ये आशी इंडिया ग्लास की बात रही। Next will be the big boy of Nifty, Reliance Industries. Reliance Industries best buying zone 2076 to 2154, good buying zone 2154 to current market price. और जो पी है वो पी का तो 18.2 है, उसका 10 साल का एवरेज पी से ऊपर ही चल रहा है ये, बट वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन इंडिया। और ये पोर्टफोलियो स्टॉक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया है। रिलायंस का हम चार्ट देखते हैं तो ये आज इसने मदर लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये 2154 या 2176 या फिर जो इसके फादर लाइन है 2000 के करीब, वहां से ये बाउंस ले। तो गिरते हुए स्टॉक को कभी मत लेना। ट्रैकिंग क्वांटिटी आप 2-5 लेके रख दो आपके पोर्टफोलियो में, ताकि आपको आप उसको ट्रैक कर सको रेगुलरली। पर जब बाउंस करते हैं ये स्टॉक, ये सारे स्टॉक, तब एंट्री इसमें बनती है। HCL Technologies is looking good on chart। पहले चार्ट देख लेते हैं इसका। ये देखो मदर को भी अभी इतनी क्राइसिस हुई, इजराइल का वॉर हो गया, फिर भी ये मदर लाइन के पास भी नहीं आया। 1215 का सपोर्ट लेके ये 2-3-4 दिन से मार्केट फॉल हो रही है, लेकिन ये इसी सपोर्ट को लेके स्ट्रॉन्ग खड़ा है। तो जब ये ऊपर के साइड बाउंस करे तो इसमें एक एंट्री का चांस बनता है।
तो 1143 टू 1215 अगर ये मिल जाता है ना, तो इट विल बी अ गुड टाइम टू बाय। 1215 से करंट मार्केट प्राइस भी पूरा टाइम नहीं है इससे बाय करने का, स्पेशली स्पेशली बिकॉज इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.9% है, 4% के जितना ये आपको डिविडेंड भी देता है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक दैट विल टॉक इज टीसीएस। टीसीएस आप सब जानते हैं रिलायंस की तरह वन ऑफ द टॉप कंपनीज है इंडिया की। 3078 टू 3171 will be the best buying zone. 3171 to 3264 will be good buying zone. और इसमें चार्ट हम देखते हैं तो चार्ट में ये एक स्क्वीजिंग ट्रायंगल बना रहा है और आज इसने मदर लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन यहाँ पे एक 3264 पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और एक दूसरा सपोर्ट भी है, तो ड्यूअल सपोर्ट है। 3264 पे हो सकता है यहाँ से ये बाउंस हो, तो जब बाउंस हो तो इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। अगर वहां से बाउंस नहीं होता है तो 3171 या 3078 का भी एक अच्छा लेवल है, या तो उसके नीचे एक 3043 का भी लेवल मुझे दिखता है। HDFC बैंक इज अनदर बिग बॉय of the market, and 1365 to 1400 will be good level to buy. 1400 to current market price is also a good level to buy this stock in my opinion. 10 ईयर का इसका जो PE है वो 25.5 है, करंट PE 16.4, तो PE रिलेटेड प्राइस एक्सपांशन का भी अच्छा चांस इसमें बनता है। HDFC का चार्ट है, मेरे ख्याल से ये 200 EMA या फादर लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस होना चाहिए जो 1423 के पास है, उसके नीचे भी इसके पास 1365 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सन फार्मा, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया, 925 टू 1050, 1050 टू करंट मार्केट प्राइस, ये इसके अच्छे लेवल्स होंगे। और इसका चार्ट हम देख लेते हैं तो ये जो पैरेलल चैनल में चल रहा है, जस्ट आज 50 उसके मिड मिड चैनल सपोर्ट को तोड़ के इसने नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है 1050 या उसके नीचे चैनल बॉटम 1000 के आजू बाजू से बाउंस करे, तो जब बाउंस करे तब इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टाटा स्टील 102 से लेके 113 विल बी गुड बाइंग जोन, और 102 से 113 टू करंट मार्केट प्राइस भी एक गुड बाइंग जोन है। 102 टू 113 इज द बेस्ट बाइंग जोन। डिविडेंड यील्ड भी टाटा स्टील का काफी अच्छा है, विच इज अराउंड 3%। टाटा स्टील का चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है और उसके नीचे मदर लाइन सपोर्ट भी है जो कि करीब 115 के लेवल पे 115 के लेवल पे उसका एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक अबाउट विच, तो ये अपने आज जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो हो गए। नाउ वी कैन हैव एन ओपन माइक सेशन, और हमारे पास 5-6 मिनट हैं, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसमें कुछ गाइड कर पाऊंगा। If you have any questions, you can shoot them. Otherwise, we will close the webinar over here. इसकी recording जो है वो YouTube पे आपको I have one question, विशाल Yes. भाई। सपोज Yes. ये इंडेक्स डाउन होता है जी। तो या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स और कोई भी मिड कैप इंडेक्स इसके साथ ही वो फॉल होता है, ठीक है। तो अभी हम वो इंडेक्स सपोज 10-15% डाउन होता है और वहां पे हम 3-4 लाख इंडेक्स पर ही लगा दे, तो सपोज थोड़ा भी ऊपर जाता है 10% तो हमें रिटर्न मिल सकता है, राइट? वैसा कर सकते हैं क्या? आपका क्वेश्चन क्या है? देखो, मैं चार्ट देख के बता सकता हूँ कौन से स्टॉक में क्या कब कैसे इन्वेस्ट करना। नॉट स्टॉक दूसरा पॉइंट ये है सर कि बुल रन में लोगों ने पैसे बनाए हैं, लेकिन ज्यादा पैसे जो होते हैं वो तभी बनते हैं जब बेयर मार्केट में जब लोग बेच रहे हो, तब जिन्होंने अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे अच्छे चार्ट में जब उसका अच्छा लेवल है तब आपने अगर लिया है
तो दैट इज अ बेटर टाइम टू बाय दैट स्टॉक. नहीं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि सपोज स्मॉल कैप्स इंडेक्स सपोज यहाँ पे 20% गिर जाता है, तो अभी मैं इंडेक्स पर ही लगा लूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स पर ही 2-3 लाख लगा दो, तो थोड़ा भी ऊपर जाता है इंडेक्स तो मुझे मिलता है रिटर्न, नॉट स्टॉक स्पेसिफिक. ठीक है, मैं आपको जो है मैं इंडेक्स का चार्ट शेयर करने की कोशिश करता हूँ लाइव. जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स. तो अभी आप देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज काफी एक अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ पे. ये मैं लाइव चार्ट बना देता हूँ. ये एक सपोर्ट है और उसके नीचे ये फादर लाइन सपोर्ट भी है, बराबर है. ये जो इसका 10710 है. और उसको रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, डबल रेजिस्टेंस होगा इधर 12,000 लेवल के आजू बाजू. और उसके अलावा जो मदर लाइन है 11971 के आजू बाजू. तो यस, आज उसने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है इंडेक्स ने. और इंडेक्स इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. और ये भी आप कर सकते हैं. मेरे ख्याल से 12598 पे आज से 2-3-4 महीने में जा सकता है. तो मतलब 10% का मूव इसमें आ सकता है. लेकिन अगर ये 50 EMA को पार करता है 11971 पे तो. ओके ओके, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस? तो यस. सर ये इंडेक्स को कैसे बाय कर सकते हैं? स्मॉल कैप इंडेक्स का कोई ईटीएफ है क्या? सर सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आपका क्वेश्चन. सर ये इंडेक्स को बाय कैसे कर सकते हैं? स्मॉल कैप का कोई फ्यूचर या ईटीएफ है क्या, तो उसको बाय कर सकें? इंडेक्स के फंड भी होते हैं और ETF भी होता है. वो आप बाय कर सकते हैं. बहुत सारे इंडेक्स आप ETF करके डालो तो वो भी आपको मिलेगा. और इंडेक्स फंड भी होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स, म्यूचुअल फंड्स. एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज. और ओके अभी सर. उसका फ्यूचर वगैरह भी शुरू हुआ है. ओके, थैंक यू. 2-3 क्वेश्चन है इधर. मैं वो ले लेता हूँ. तो सुमित जी का क्वेश्चन है MCX के बारे में, वेंकटेशन अबाउट डिवीज लैब, और XP का क्वेश्चन है अवंती फीड्स और MCX. अभी टाइम हमारे पास कम बचा है, बट मैं जो हो सके उतने कवर करने का ट्राई करता हूँ. तो पहले हम लेते हैं MCX. MCX जो है वो एक अच्छे, आज आज भी वो एक डेली पे हम देखते हैं. तो डेली पे एक अच्छे लेवल पे आज इसने सपोर्ट लिया है. और अगर ये मुझे 1950 या फिर 1650 के आजू बाजू मिल जाता है बाउंस करते हुए, तो ये एक अच्छा इसमें स्कोप बन सकता है. 2427 इसका टारगेट रहेगा. मैं अगर एंट्री लूंगा तो वो एंट्री होगी आफ्टर क्लोजिंग अबाउट 2256, 2256 के ऊपर मैं एंट्री लूंगा इसमें. और मेरे टारगेट इसमें होंगे 2333 और 2400. और अगर नीचे जाता है तो नीचे जाके जब बाउंस करता है 1900 के लेवल से या 1600-1700 के लेवल से, तो भी एक इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है. तो 10% का मूव इसमें अगर दिख सकता है. अवंती फीड्स किसी का क्वेश्चन था? अवंती फीड्स में मैं एंट्री 425 के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद ही लेना चाहूंगा. और उसके टारगेट्स 445, 465 और 488 हो सकते हैं. उसके अलावा ITC सर, आई जस्ट स्पोक अबाउट ITC इन द वीडियो. मैं व्हेन आई पोस्ट द वीडियो ऑन YouTube, इफ यू हैव मिस्ड इट यू कैन सी. डिवीज लैब, Divi's Lab is right now at the mid channels line support. So when it bounces, then you can take X by 3 entry. X by 3 entry will be about 3547 level, and final entry can be about 3658 levels. Targets will be 3800, 3870, and long term target can be 3900 in Divi's Lab.
वरुण बेवरेजेस का व्यू सीमाद्री जी मैं आपको दूंगा या आप मुझे देंगे? I will not disclose the reason, but it will be you who will give me the view about Varun Beverages actually, because you are closely associated with the companies. But yes, Varun Beverages, let us check the chart. A very good support taken today. Yep. ये देखो इधर मैंने 1840 का इधर लेवल लाइन बनाया ही था, करीब करीब उसी जगह से इसने सपोर्ट लेके आज अच्छा क्लोजिंग दिया है. But I will Exactly. add more Varun Beverages after it closes about 904. Target 90. 955 and 986 will be the target, and long term I see it around 1050 or 1100. Yeah, so like Vishal bhai, in short term it looks promising, correct? Like it has not broken all its big channels. Pardon? I said short term में इतना और weakness नहीं लग रहा है ना इसमें, like it has been bounced back today. Yes, good bounce today. Exactly. Okay guys, I have some time constraints today. I have to go somewhere, so we'll